اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزیزان محترم، 3 شعبان معظم کی تاریخ ولادت باسعادت شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ ماہ شعبان معظم بابرکت مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، دعاؤں کا، استغفار پڑھنے کا، روزے رکھنے کا حکم ہے۔ تو ایک برکت والا مہینہ جس میں کربلا کے عظیم ہستیاں اس مہینے کے اندر ولادت ہوئی۔ پہلی شعبان معظم بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت، 3 شعبان حضرت امام حسین کی ولادت، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ایک تاریخ کے مطابق، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، یعنی عظیم ہستیوں کی ولادت کا یہ مہینہ، اور وہ ہستیاں کہ جن کی قربانیوں کے صدقے میں اسلام کی ہمیشہ کے لیے تا قیامت حفاظت ہو گئی، اور اسلام کی صحیح تصویر آج ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ صدقہ ہے کربلا معلیٰ میں ان عظیم ہستیوں کی قربانیوں کا، کہ جس کی وجہ سے اسلام ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا، زندہ رہ گیا۔ عزیزان محترم، اور یہ ماہ شعبان ماہ مبارک کے رمضان سے پہلے ہے، تو اللہ تعالیٰ شاید اس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کربلا والوں کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں ماہ مبارک کے رمضان سمجھ میں آ جائے گا، یعنی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کربلا سے ہو کے جائے گا۔ کربلا کے بغیر اللہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظمت تو سبھی جانتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسی عظمت والی ہستی کہ جس کے بارے میں اگر ہم قرآن میں دیکھیں، آیتیں موجود ہیں اور سورے موجود ہیں، سورہ کوثر ہو یا سورہ دہر ہو، اس میں پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں ہے، امام حسین اس میں شامل ہیں۔ آیت تطہیر ہو، اس کا مصداق بھی امام حسین ہے۔ آیت مباہلہ کا مصداق امام حسین ہے۔ آیت مودت کا مصداق بھی امام حسین ہیں۔ سورہ فجر کی آخری آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا آج کی اس محفل میں، تو عزیزان محترم، اس سے مراد نفس مطمئنہ ہر زمانے میں امام ہوتا ہے۔ ظاہر امام کے علاوہ اور کون نفس مطمئنہ ہوتا ہے؟ تو سورہ فجر بھی امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن میں ہر جگہ آپ کا ذکر ہے، سورہ رحمان میں ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ عزیزان محترم، یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ایسے دریا کے علم کا سمندر، علم اور عمل کا اور کمالات کا سمندر، یہ 2 دریا، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام معصومہ کونین سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو نسل چلے گی، یخرج منہما لولو والمرجان، کہ ان دونوں ہستیوں سے جو نسل نکلے گی، ایک لولو ہوگا، ایک مرجان ہوگا۔ لولو سبز رنگ کے پتھر کو، نگینے کو کہا جاتا ہے، مرجان سرخ رنگ کا پتھر ہے۔ عزیزان محترم، نگینہ، اور اس سے مراد، سبز پتھر سے مراد امام حسن کی شہادت، سرخ پتھر سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ تو یہاں بھی امام کا ذکر ہے۔ پورا قرآن عزیزان محترم امام حسین کی شان میں کئی آیتیں اور کئی سورے موجود ہیں، تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں پنجتن پاک علیہ السلام کی
आखिरी हस्ती, आखिरी शख्सियत इमाम हुसैन, आपका जिक्र हर जगह मौजूद है। और अल्लाह के रसूल ने तो इतनी हदीसें और अमल करके बता दिया, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। अगर हुसैन को पहचानना है अज़ीज़ान मोहतरम कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यानी मैं और हुसैन अलग अलग नहीं हैं। अब यहाँ से भी अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह के रसूल ने इन शहज़ादों के लिए फरमाया कि ये जन्नत के जवानों के शहज़ादे हैं, सरदार हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि आप अल्लाह के रसूल कभी आपके लिए नाका बनते हैं और कभी आपको अपने दोष पर सवाल करते हैं। इसी तरह हमने देखा कि अगर आप पुष्प पर सवार हो जाते हैं तो सजदे को तूल दे दिया जाता है। और यहाँ से एक बात भी समझ में आ जाती है अज़ीज़ान मोहतरम कि हुसैन और सजदे अलग नहीं हैं। अगर हुसैन की मोहब्बत दिल में है तो सजदे भी तुलानी होने चाहिए, सजदों में इजाफा होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम कुरान और हदीस में हर जगह, सीरत नबी में हर जगह इमाम हुसैन का जिक्र मौजूद है। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान और हदीस के साथ साथ अज़ीज़ान मोहतरम सीरत नबी के वाक़यात के हर जगह आपने फरमाया, खुतबे के दौरान इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की मार्फत कराई और मुसलसल आप तवज्जो दिलाते रहे। यहाँ तक कि अगर सवाल कर लिया जाता है कि हमारे लिए ईद का लिबास कहाँ से आएगा, तो जन्नत से लिबास आ जाता है। इससे मुराद क्या अज़ीज़ान मोहतरम? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, अगर आप उसके मालिक नहीं हैं तो उस चीज़ को मालिक की मर्ज़ी से इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको बाहर नहीं ले जा सकते, उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन हज़रत इब्राहिम की अजीब व गरीब दुआ कुरान मजीद में अजीब दुआ है, वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम। ए परवरदिगार आलम, मुझे जन्नत के वारिसों में से करार दे। तो ये कौन है वारिस? जो हज़रत इब्राहिम जिसकी तमन्ना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो यकीनन ये पंजतन पाक अलैहिस्सलाम जन्नत के वारिस हैं। अगर लिबास जन्नत से आ जाता है, अगर ताम, अगर फल जन्नत से आ जाते हैं, मेवे आए जन्नत से अगर आ जाते हैं इस दर पर, तो समझ जाइए ये जन्नत के वारिस हैं। जन्नत में रहेंगे तब भी ये उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और जन्नत से बाहर भी लेके जा सकते हैं। इनके लिए आ सकती हैं वो चीज़ें, वो नेमतें, इसलिए कि ये जन्नत के वारिस हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, राज़ियतन मर्ज़िया के इस आयत के अंदर पैगाम दिया जा रहा है कि नफ्स मुतमइन्ना भी हैं और राज़िया मर्ज़िया भी हैं। राज़ी और मर्ज़ी से मुराद क्या है? ऐसी नफ्स मुतमइन्ना कि जो अल्लाह से राज़ी है, मर्ज़ियतन, और अल्लाह उससे राज़ी है। तो मामूलन तो ये होता है कि शुक्र करने वाला अलग होता है और जिसका शुक्र किया जाता है वो अलग होता है अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमूमन इसमें फ़ाइल दो और इसमें मफ़ूल दो मुख्तलिफ शख्सियात के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन राज़ियतन मर्ज़िया, ये पैगाम मिल रहा है इस आयत के अंदर, राज़िया भी इमाम हुसैन है और नफ्स मर्ज़िया भी इमाम हुसैन है। ये अज़मत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। विलादत होती है तो आपको मुबारक देने के लिए सिर्फ असहाब और उम्मत के लोग ही नहीं, बल्कि आसमान से फरिश्ते आते हैं। यहाँ तक कि फितरूस को शिफा मिल जाती है और ये पैगाम मिल जाता है कि देखो ये वो हस्तियाँ हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि अम्बिया को जब अज़ियत दी जाती थी तो अम्बिया जब ज़ख्मी हो जाते थे, हज़रत नूह के बारे में है कि जब आप ज़ख्मी हो जाते थे तो फरिश्ते आते थे और उनके परों से आपको शिफा मिलती थी। लेकिन इमाम हुसैन की अजमत यह है कि अगर फरिश्ते के पर नाकारा हो जाते हैं, परवास के काबिल नहीं रहते या इताब में है तर्क औला की वजह से, तो इमाम हुसैन के गेवारे से अगर मस हो जाता है तो उसे शफा मिल जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यही फ़र्क है कि फरिश्ते जिस दर्ज से इस्तिफ़ादा करें, जहाँ पर आकर शफा हासिल करें, तो ये अज़मत है इन हस्तियों की। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन की विलादत आप देखें, इतनी अज़मतें, इतने कमालात, ऐसे कमालात कि अगर आप ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो आपका एक कदम एक हज के बराबर हो जाता है। यह है इमाम हुसैन की शख्सियत। आप के ज़ाहिर इस सूरह रहमान के अंदर मरजान से मुराद क्या है कि वो सुर्ख पत्थर जिससे मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो बहुत सारे सऊदी अरब से एक तिब
सेंटर्स असोदिया तिब सेंटर वालों ने एक तहकीक की ओर कहा कि मरजान ऐसा पत्थर है, अगर इसका सुफूफ किसी ऐसे शख्स को खिला दिया जाए कि जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही होती तो उसको औलाद मिल जाती है। ज़ाहिर इमाम हुसैन के सदक़े में इंसान को औलाद भी मिलती है, रिज़्क़ भी मिलता है, मार्फत भी मिलती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। आज का सबसे बड़ा पैगाम यही है। पेशावर का वाक़या हमें ये पैगाम दे रहा है कि देखो, हुसैन वाले और अली वाले मस्जिद में मिलेंगे, नमाज में मिलेंगे, और जो इनके दुश्मन होंगे यजीदी बनी उमैया की नस्ल वाले, चाहे उनका ताल्लुक मदरसे से हो, किसी भी मसलक से हो, अज़ीज़ान मोहतरम, यजीदी बनी उमैया की ये नस्ल ये पैगाम दे देती है कि हम नमाज के भी दुश्मन हैं, मस्जिद के भी दुश्मन हैं, हुसैनियों के भी दुश्मन हैं, अली वालों के भी दुश्मन हैं। तो पहले ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से इन्होंने दुश्मनी की, आज उनकी नस्लें अहले बैत के चाहने वालों से दुश्मनी करते हैं। लेकिन इमाम हुसैन का चाहने वाला हर जगह अज़ीज़ान मोहतरम कभी ऐसी साजिश नहीं करता, कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। यही सबसे बड़ी पहचान है। तो ज़रूरी है अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मुसलमान समझना चाहते हैं, अमन का पैगाम देना चाहते हैं, मुत्तहिद रहना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन का जिक्र करना अगर सीख जाएंगे, मार्फत हासिल कर लेंगे, तो तमाम यजीदियत का और बनी उमैया की इन नस्लों का, नजीस नस्लों का खात्मा हो जाएगा। ये शोहदाए करबला के साथ जो मुंसलिक हो गए हैं, शोहदाए पेशावर अज़ीज़ान मोहतरम, इन्होंने पैगाम दे दिया कि देखो, हुसैन वाले, अली के चाहने वाले नमाजी भी होते हैं, और उनका दुश्मन मुखालिफ और दुश्मन नमाज और दुश्मन मस्जिद होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन की शख्सियत यही है कि अज़मत और कमालात इतने ज़्यादा कि सबसे तेज़ चलने वाली कश्ती, कि अगर कोई इस कश्ती में सवार हो जाता है तो उसे नजात मिल जाती है। हुर की मिसाल हमारे सामने है कि हुर ने जैसे ही तवस्सुल किया, इमाम हुसैन से वाबस्ता हुए, चश्मे ज़दन में हिदायत याफ्ता हो गए, जन्नती हो गए। कोई हुर जैसा नहीं दुनिया में किस्मत का धनी अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी किस्मत कि हुसैन से वाबस्ता हो जाओ तो इंसान अगर जहन्नमी भी होगा तो उसे नजात मिल जाएगी, जन्नती हो जाएगा। और यही नहीं, अगर खाक के ज़र्रों पे हुसैन का खून गिर जाता है तो वो खाके बला, खाके शफा में तब्दील हो जाती है, खाके शिफा में तब्दील होकर ये पैगाम मिल जाता है। और ये बात तो अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत हबीब इब्न मज़ाही इतनी मार्फत रखते थे कि कम सीनी के आलम में इमाम हुसैन के कदमों की खाक को अपनी आंखों से लगाते थे। उस वक़्त पैगाम दे दिया था कि देखो, ये वो अजीम हस्ती है, अभी शहीद नहीं हुए, अभी खून का कतरा ज़मीन पर गिरा नहीं है, लेकिन इनके कदमों की खाक इंसान के लिए शिफा है, खाके शिफा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन की अज़मत, ऐसी अज़मत, इमाम हुसैन वाला कभी गुमराह नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत उसे ख़रीद नहीं सकती। यही हमने देखा कि हमेशा शियों के साथ, अहले बैत के चाहने वालों के साथ, इमाम हुसैन के, हुसैनियों के साथ जो साजिशें होती हैं, तो दुश्मन भी जानता है कि हुसैन वाला तो बिक नहीं सकता, लेकिन बनी उमैया की ये नजिस नस्ल यजीदी, ये जब चाहे बिक जाते हैं। इसलिए न इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना दीन से, न कुरान से। हमारी आज कि इस महफिल में आखिर में यही दुआ है, अल्लाह ताला उन शोहदा को जो शहीद हुए पेशावर के कल के वाक़े में, उन्हें शोहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए, दर्जात आलिया अता फरमाए, और इनके कातिलों को वासिल जहन्नुम अता फरमा। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार।